हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो आपका होस्ट, आपका दोस्त डीसीपी वापस आपके सामने हाजिर है एक नए थॉट, एक नए लेक्चर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं मेरा फिजिक्स चैनल फिजिक्स मेड इजी बाय डीसीपी। सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप तक वो पहुंच जाए। चलिए चेक करते हैं हमने पीछे क्या पढ़ा। यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड and then we have discussed that to represent that electric field we have to take a test charge that is positively and very small, approximately 0 test charge we will take, and we will check that the direction or motion of test charge, that imaginary line we will draw, these imaginary lines are called electric field. And due to positive charge electric fields are outward, due to negative charge electric field will be inward. This we have discussed. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए। आज का टॉपिक क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेड बाय E. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, so it is represented by capital E. Now what is the meaning of electric field strength? For example, मैंने बोला भाई, suppose we take example, मैंने बोला वहां मत जाना। क्यों मत जाना? अरे यार वहां बहुत गंदे लोग हैं। पर तुमने कहा कितने गंदे हैं? सिमिलरली ए चार्ज प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, यस और नो? एंड दैट एरिया where it will apply the force, that is called electric field. That means we can say that if I will take a charge plus q, this charge will produce electric field around itself. That means every charge will create a field where it can apply force on another charges. But what? How much? अगर मैं ये पूछूं how much field it will apply, you tell me. This is a charge. It is going to produce electric field around itself. It is going to create electric field around itself. इसने अपने चारों तरफ क्या पैदा कर रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम इमेजिनरी लाइंस दिखाते हैं। वो इमेजिनरी लाइंस हैं, रियलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर चार्ज रखा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे। नो, these are imaginary lines. So similarly this charge is going to create, पहले हम देख लेते हैं, every charge create field around itself, yes or no? Every charge create field around itself. And to check that electric field, what we will do? क्या करते हैं हम? We take always a test charge. कैसा चार्ज लेते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली 0। अब यहां तो लिखा हुआ है एवरी चार्ज क्रिएट फील्ड अराउंड इट। प्रत्येक चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? फील्ड। बट देयर इज ए चार्ज हु इज नॉट क्रिएट फील्ड। Who is that? Test charge. Test charge never create electric field. Why? Because we have taken it very small. If it will also produce electric field, then it will affect the source charge. It will affect the source charge. Due to that reason, this test charge will be very small. क्या होगा? बहुत छोटा होगा टेस्ट चार्ज, ताकि वो इसको इफेक्ट ना करें। Okay. Now that means this charge is going to produce electric field around itself. So if अगर मैं क्या लूँ? If I will take a test charge here, it will apply a force on it. This is also plus, so repel कर देगा। यहाँ रखूँ तो here also it will repel it. यहाँ रखूँ तो here also it will repel it. Yes or no? That means these lines are going to represent what? Electric field. Yes or no? These are the electric field lines due to this charge. These are imaginary. These are not reality. Every charge create field. Now if someone will ask, today topic what is electric field strength, if someone will ask us that what is the value of electric field at this point, find electric field at point P. किसने बोला कि चलो तुम कह रहे हो कि ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा कर लेता है जहां पर ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल करता है। क्लियर? तो आप बताइए इस जगह पर ये कितना फोर्स, कितने स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? मतलब ये कितनी ताकत यहां पर लगाता है, कितना फील्ड इसका इस जगह पर है। तो द वैल्यू एट एनी पॉइंट, इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के किसी भी पॉइंट पर आप क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन होता है हाउ वी विल फाइंड, कैसे निकालेंगे सर? क्या करेंगे?
हम क्या करेंगे, वी विल टेक, सपोज दिस पॉइंट इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, मेन चार्ज से कितनी दूरी पर है r, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अवर टेस्ट चार्ज हियर, हम अपना टेस्ट चार्ज यहां पर लाएंगे, टेस्ट करना है, सो क्या लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज. नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन, दिस इज प्लस, वी हैव टेकन दिस प्लस and this is also plus, same charges are repel, it will apply a force on this test charge outward, like this is the force, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, yes or no. Now if you will divide this force F, whatever force will apply on test charge by main source, you will divide that force by test charge, this is called electric field strength, this is called इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं. सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब बनाइए डेफिनेशन, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एट दैट पॉइंट यू विल ब्रिंग योर टेस्ट चार्ज, देन दिस चार्ज विल अप्लाई द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव व्हाटएवर फोर्स ऑन इट. अगर ये प्लस है तो रिपल्सिव लगाएगा, अगर ये माइनस है तो अट्रैक्टिव लगाएगा. दैट फोर्स विल बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. यहां पर निकालना है तो यहां पर भी यही करेंगे, यहां पर निकालना है तो यहां पर भी टेस्ट चार्ज रखेंगे और फोर्स निकालेंगे. दैट फोर्स विल बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज. सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स, दिस इज फोर्स, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. जब किसी से हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या लिख देते हैं, पर मतलब नीचे यूनिट, यूनिट मतलब 1 हो गया ना, डिवाइडेड बाय कर दिया तो कट जाएगा वो तो. सो कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. और कुछ बुकों में ये ऐसे लिखा रहता है, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यहां पर लिखा रहता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0. क्या मतलब हुआ इसका, इसका यही मतलब है टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, इट्स मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0. क्या होना चाहिए, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए. लिमिट Q टेंड्स टू 0 का मतलब है जो टेस्ट चार्ज हम ले हैं, जो भी टेस्ट चार्ज आप ले वो बहुत छोटा होना चाहिए, वो सोर्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसे क्या कर देगा, रिपेल करने लगेगा, इसका फील्ड को इफेक्ट करेगा, इसलिए छोटा होना चाहिए. Now if you write this thing in vector form, everybody know, पीछे हमने वीडियो में डिस्कस प्रूफ किया है कि कूलॉम फोर्स कैसा फोर्स है, वेक्टर. अगर ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेक्टर क्वांटिटी. सो विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. नाउ इट्स अ यूनिट, इट इज अ वेक्टर, इट्स यूनिट. नाउ E इक्वल टू व्हाट इज E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. F यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम. You can represent it in N upon C, Newton per coulomb. Electric field strength unit is Newton per coulomb. Now it is which type of quantity? Vector. Vector quantity have direction. प्रत्येक वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है. अगर वेक्टर है तो वेक्टर उसे कहते हैं जिसकी डायरेक्शन हो. तो क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव. That means we can say its direction is positive to negative. इस डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. प्लस से कहां की ओर होती है, माइनस की ओर होती है. प्लस से कहां की ओर होती है, माइनस की ओर. क्लियर, इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. राइट नाउ we will find out electric field strength due to a point charge plus Q at distance R.
हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r इन एक चीज और लिख लेते हैं, इन वैक्यूम, where we have to do this condition in vacuum. So let there is a point charge plus q, this is a point charge plus q. Due to this charge, इस चार्ज के कारण कितनी दूरी पर, at a distance r, suppose there is a point p where we want to wish, where they are asking us that find the value of electric field at this point. This charge will produce electric field around itself. Yes or no? So at this point our task is to find out electric field strength. So for that what we will do? Now at this point we will put a test charge. क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज. जब भी टेस्ट करना पड़ेगा कौन सा चार्ज रखेंगे? टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल. Now when we will put the test charge, this is plus, this is also plus. These two charges will repel by a force. Yes or no? So now to find we will take test charge, we will take test charge plus q naught at point p. At point p we will take a test charge. Force due to source charge on test charge. What is the force on test charge due to, this is source charge and this is test charge. Force F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught mod upon r square. Yes or no? Now so electric field स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. एफ इज व्हाट? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्यू नॉट. क्यू नॉट मींस इसका मॉड ही तो वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r. Clear? If you write it in vector form, E vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. मैंने बताया था आपको, क्या लगा देंगे साथ में? r cap. और you can write it, और कैसे लिख सकते हैं? 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r vector upon r cube. एक यहाँ बढ़ गया तो एक यहाँ भी बढ़ जाएगा, सही है? r vector upon r cube, because आर कप्पा इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर. मॉड ऑफ आर मतलब आर. मॉड वैल्यू तो होती है जिनमें जो स्क्वायर टर्म है इस तरह के बिना लिखे हुए हैं वो सब वो मॉड वैल्यू होते हैं. दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक. वेक्टर फॉर्म मींस, मान लीजिए सपोज आपको आर दिया 2 मीटर, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दैट न्यूमेरिकल. लेट आर इज गिवन 3i cap plus 2j cap plus 3k cap. In that case you will not apply this formula. This is what form? Vector form. In this case you will apply this formula. You will find out mod value, then you will multiply it by its vector. So this is called vector form, and this is the electric field due to a point charge at distance r. Clear? Very important from this. Yes? So this is very important. How many questions are there? Number first question. What is electric field strength? Force per unit test charge in electric field at any point is called electric field strength at that point. Test charge should be very small. Clear? Its own electric field will be 0. तो दूसरा क्वेश्चन है, is there any electric field due to a test charge? No, there is no electric field due to a test charge because it taken approximately 0. कैसा लिया गया? approximately 0 लिया गया. Number third, which type of physical quantity electric field? Electric field is a vector. Its direction is positive to negative. कल ही हमने पढ़ा टेस्ट चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, तो प्लस से कहां की ओर जाएगी? प्लस से बाहर की ओर और माइनस के अंदर की ओर. नाउ इट्स यूनिट न्यूटन पर कूलम, F अपॉन क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सिंपल फॉर्म एंड इन यू कैन फाइंड आउट इन वेक्टर फॉर्म. सर अब क्वेश्चन बनना होगा, कई सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये प्लस नहीं होता क्या होता?
अगर ये क्या होता माइनस होता तो फिर क्या होता, देन सिमिलरली वी विल टेक ए टेस्ट चार्ज हियर। नाउ ये फोर्स इस पर रिपल्सिव नहीं होता, कैसा होता, अट्रैक्टिव होता, और हम निकाल देते इस वेक्टर फॉर्म बिल्कुल उसी तरह से कर लेते, लेकिन अब फोर्स कहां की ओर आ जाता है, इनवर्ड आ जाता, फोर्स इज टुवर्ड्स चार्ज हो जाता। अभी कहा था अवे चार्ज, प्लस के लिए अवे चार्ज और माइनस के लिए टुवर्ड्स चार्ज होता है, और कोई अंतर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट विल बी टुवर्ड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगला टॉपिक है ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के लिए हमने ग्राफ चेक करने, जैसे हमने कूलॉम लॉ में चेक किए थे वैसे हमने यहां पर भी चेक करना है कि हाउ मेनी ग्राफ वी कैन ड्रॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ कम हियर, वेरी इजी, सी we know sir what we know E equal to 4 pi epsilon naught q upon r square, simple form. Clear? Now from here we come to know E directly depend on 1 upon r square. That means if you will draw the graph between E and R, E and R, when R will increase, E will decrease by double, दुगने से घटेगा। So that means it is not a straight line. तो कैसी लाइन आएगी, कर्व्ड। E will be 0 when R equal to infinity. E की वैल्यू 0 होगी, कहां पर होगी, when R is infinity, R infinity हो जाएगा। That means with distance the value of E will decrease, so graph will come like this. Yes or no? So the graph will come like this. No, if there is another task, your task is draw the graph between E and 1 upon r square. मान लो आपको E और 1 upon r square में करना है। Now this whole term E and this whole term are directly proportional, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। That means it will come a straight line. It will come a straight line. कैसी लाइन आएगी, straight line आएगी। कैसी लाइन आएगी, straight line आएगी। Clear? Yes or no? So these two graphs are important. Now this is the first. Now in competitive exam which type of questions आते हैं, ग्राफ के ही क्वेश्चन होते हैं। अब करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है। मान लीजिए हमने लिया एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। अब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ई और आर में। किस में ड्रॉ करना है, ई और आर। ई कौन से एक्सिस में लिया गया, वाई में, और आर में लिया गया एक्स में। ठीक है, मुझे इसका ड्रॉ करना है। अभी ये कैसा है, प्लस है। अब देखिए प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होता है, बाहर की ओर। ये किसके कारण है, ड्यू टू प्लस, ई पॉजिटिव होगा। माइनस के कारण कहां होता है, इनवर्ट होता है ना, ई माइनस का। तो मतलब बाहर को जो जाएगा वो प्लस के लिए होगा, अंदर को जो आएगा वो किसके लिए होगा, माइनस के लिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। ई आर, भाई ई और आर कैसे डिपेंड करते हैं, ई इनवर्स से डिपेंड करता है आर स्क्वायर में। ई 0 होगा कब, व्हेन आर इक्वल टू इंफिनिटी। भाई ई 0 होगा, आर जब क्या होगा, इंफिनिटी होगा। अब ये कैसे चार्ज है, प्लस, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ई पॉजिटिव होगा, ई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। प्लस के कारण आउटवर्ड होता है ना, पॉजिटिव होगा। कहां की ओर होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब पॉजिटिव होगा, ई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। जब ये बाहर की ई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर की ओर होगा तो ई आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो ग्राफ होगा कुछ ऐसा। इनफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां आ जाइए, अब मान ली माइनस आर भी है, माइनस आर। अब लेफ्ट में जब आर बढ़ेगा, यहां को इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, इनवर्ट। मैंने कहा ना इनवर्ट। इनवर्ट मतलब देखिए बाहर की ओर प्लस का और अंदर आ रहा तो माइनस। ये प्लस है, प्लस के कारण ऐसे जाती है फील्ड लाइन। तो यहां पर कैसे दिखाई देगा कि ये अंदर को आ रही है ना, इधर को आ रहा है डायरेक्शन। तो इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। इधर को आ रही, इधर को आ रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए नेगेटिव।
बाकी की सारी घटनाएं वही आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ई 0 होगा व्हेन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, जब आर इन्फिनिटी होगा तो ई 0 होगा। लेकिन अब ई यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ई नेगेटिव होगा तो ये कौन सा एक्सेस है, पॉजिटिव। तो यहां को हमने प्लस लिया तो माइनस कहां हुआ, नीचे हुआ। माइनस कहां हुआ, नीचे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कैसा दिखा है, माइनस जैसा। तो यहां कैसा आएगा ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा। क्लियर, समझ आया। चलिए अब बात करते हैं, मान लीजिए हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है किसके लिए, यहां पर इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लीजिए हमने चार्ज लिया, क्या लिया चार्ज, अब चार्ज लिया -q, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया r और यहां ले लिया हमने e। चलिए कैसे आ जाए, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है ना, टुवर्ड्स से चार्ज होता है। ये आगे डायरेक्शन दोनों जगह बना दिया मैंने, यहां पे बना दिया, -r में बना दिया मैंने, +r में। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होता है, उसी की तरफ को होता है, माइनस की तरफ को होता है। यस और नो, तो मैंने माइनस की तरफ को दिखा दिया। क्लियर। अब आइए इस फंक्शन में, यहां पर E/dt डिपेंड करेगा 1/r² पर। E 0 होगा व्हेन, सब कुछ वही है, r इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये कहां को आ रहा है, अंदर को। अंदर वाला क्या होता है, माइनस होता है। यहां हमने क्या लिया, E कौन सा, ये कौन सा एक्सेस है, प्लस। माइनस कहां हुआ, नीचे हुआ। अब यहां को कहां दिखाई दे रहा है, अंदर को दिखाई दे रहा है। अंदर को मतलब माइनस, इसका मतलब इसका ग्राफ कहां आएगा, यहां आएगा। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं। अब यहां देखिए, इस पर आ जाइए, यहां पर भी वही रूल फॉलो करेगा, E/dt डिपेंड 1/r², E विल बी 0 व्हेन r इक्वल टू इन्फिनिटी। सब कुछ सेम है। अब जरा यहां एरो देखिए, इधर को आ रहे हैं, इधर को मतलब प्लस की ओर जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब E क्या होगा, प्लस होगा। E क्या होगा, प्लस होगा। तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, यहां आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा। So like this, these graphs you will get in competitive exam, बहुत इंपोर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको चेक करना होता है, वो अकेला ग्राफ नहीं देता, दोनों ग्राफ देता है। तो आपको दोनों ग्राफ को आइडेंटिफाई करना, बहुत अच्छी मेथड मैंने आपको बना दी। देखिए प्लस बाहर को, पहले एरो दिखा लीजिए दोनों कोऑर्डिनेट में, यहाँ भी दिखा दीजिए, यहाँ पे, फिर ग्राफ बनाए। यहाँ को जा रहा है तो प्लस है, यहाँ को आ रहा तो माइनस कोऑर्डिनेट है। क्लियर, ग्राफ वैसे ही बनेगी। चलिए अब मान लीजिए थर्ड पॉइंट लेते हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आपके पास अब चार्जेस हैं +q और दूसरा +q। चलिए इन दोनों के कारण आपने अब ग्राफ ड्रॉ करना। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। सबसे पहले यहां आ जाइए, कैसा चार्ज है, प्लस। ये भी कैसा लिया है, प्लस। प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, आउटवर्ड। ये भी प्लस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड। ये हो गया हमारा r हुआ। यहां ले लेंगे हम, क्या हो गया, -r। यहां क्या हुआ, -r हुआ। चलिए शुरू करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक हो गया। ये कहां की ओर है, प्लस में। प्लस में है तो यहां पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। E बाकी चीजें सब सेम रहेंगी, 1/r²। E विल बी 0 व्हेन r इक्वल टू इन्फिनिटी। यस और नो, सब कुछ सेम हुआ। अब देखिए ध्यान से, ये कहां आ रहा, प्लस आ रहा। क्यों सर आप प्लस कैसे बता रहे हैं, देखिए मैंने अभी कहा ना आपको, ऐसे जा रही तो प्लस और ऐसे जा रही तो माइनस, यही तो होता है। ऐसे जा रही प्लस है तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, प्लस में आएगा। कौन कहां आएगा, प्लस में। ये आ गया, आया। अब यहां आ जाइए, यहां कहां जा रही है, माइनस की तरफ को जा रही है, तो ई क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 1/r², E 0 व्हेन। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ग्राफ ड्रॉ करना, E इन्फिनिटी। क्लियर। अब यहां पर माइनस की तरफ को जा रहा है तो E माइनस होगा, हमने E यहां लेना है। चलिए E ये है तो ये प्लस E है, ऊपर को है प्लस है, y एक्सेस पॉजिटिव y एक्सेस पे है, प्लस है। यहां क्या है, माइनस y एक्सेस है, तो नेगेटिव नीचे को होगा। तो इसका ग्राफ कहां आएगा, यहां आ जाएगा। अब बात करते हैं इनके बीच में, यहां भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां भी तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, प्लस इसके कारण ऐसे, प्लस इसके कारण भी अवे होता है ऐसे, तो इसके कारण नेगेटिव और इसके कारण पॉजिटिव। ये भी बाहर की ओर करेगा, ये भी बाहर की ओर करेगा। ये भी प्लस है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर जाएंगे। ये भी प्लस है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर जाएंगे। तो इनके बीच में अगर देखें तो ये यहां को जाएगा, ये यहां को जाएगा। इसका मतलब इसके कारण नेगेटिव होगा और इसके कारण पॉजिटिव होगा। अब देखिए
ये इक्वल और अपोजिट है, इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। उसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे, नल पॉइंट होगा, जहां पर ई क्या आएगा, जीरो। भाई एक प्लस में एक माइनस, इक्वल और अपोजिट, इनके बीचों बीच जब इक्वल डिस्टेंस, ये भी आपकी एक्स हो जाएगी और ये भी एक्स अगर ले लें तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा, आएगा जीरो आएगा। अब इसके लिए देखें, इसके लिए कहां हो, बाहर की ओर जा रहा है, इसके लिए कहां की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। जब बाहर की ओर जा रहा है तो ई प्लस रहेगा, प्लस रहेगा तो मतलब इस कोऑर्डिनेट में बने। इसके कारण अंदर को आ रहा मतलब माइनस होगा, माइनस होगा तो कौन से कोऑर्डिनेट बनेगा, माइनस में बनेगा। ये लीजिए, समझ गए। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इक्वल एंड सेम चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ्स। क्लियर, पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत आसान है, एक दो बार देखिए, बहुत आसानी से आप समझाएंगे। चलिए एक और करते हैं। मान लीजिए भाई हमें दिखाना है क्या, चार्जेस अब हमारे पास आ गए, एक आ गया माइनस क्यू और दूसरा भी कितना है, माइनस क्यू। ये चलिए दोनों माइनस है, ये भी माइनस क्यू है और वो भी माइनस क्यू है, इनके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। ये भी माइनस है, माइनस क्यू, और ये भी है माइनस क्यू। क्लियर, नेगेटिव चार्जेस है। ये हो गया हमारा ई, ऊपर को प्लस एक्सेस, ये आर हो गया और यहां हुआ माइनस आर, हुआ ना। चलिए ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान से समझिएगा आप, आराम से बिल्कुल समझिए। प्लस के कारण बाहर को होंगे, माइनस के कारण इनवर्ट होता है। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ई प्लस वाला है और ई माइनस वाला, नेगेटिव का ई और पॉजिटिव का, ठीक है। चलिए यहां आइए, इस कोऑर्डिनेट में सबसे पहले यहां ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस कोऑर्डिनेट पर आप क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर दिखेगा, इनवर्ट। इस कोऑर्डिनेट में दिखाइए कहां की ओर दिखेगा, इनवर्ट, चार्ज की तरफ दिखता ना, ये माइनस है इसकी तरफ को, ये भी माइनस है इसकी तरफ को। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां वाला क्या होता है, माइनस, इसका मतलब यहां ई क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। बाकी सब कुछ सेम हुआ, 1/r²। ई जीरो होगा व्हेन आर कितना होगा, इंफिनिटी होगा। चलिए अब देखिए, ई यहां को जा रहा है माइनस कोऑर्डिनेट में, कौन से कोऑर्डिनेट है, माइनस, तो ई ऊपर को प्लस है, ऊपर को तो आ नहीं सकता इसका ग्राफ, क्योंकि यहां क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे आएगा। समझ आ रहा है। अब यहां आ जाइए, यहां पर ई कहां जा रहा है, राइट को जा रहा है, राइट को मतलब प्लस एक्सेस में जा रहा है। कौन से एक्सेस में जा रहा है, सिंपल से समझ लीजिए, कौन से एक्सेस में जा रहा है, प्लस एक्सेस में। ये कौन से में जा रहा था, माइनस, प्लस एक्सेस में जा रहा था। ई यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई पॉजिटिव होगा, अगर ई यहां पर पॉजिटिव है, इसमें क्या है, ई पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कौन सा कहां आएगा, प्लस यहां है, यहां आ जाएगा। बाकी सब कुछ टर्म कंडीशन वही रही। अब आते हैं इनके बीच में, इनके बीच में देखिए, इसके कारण इनवर्ट, इसके कारण भी इनवर्ट हुआ। अब ये भी इनवर्ट है, ये भी इनवर्ट है, इक्वल और अपोजिट। ये प्लस में है और ये माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है और ये माइनस। अब इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, जिसे हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे, होगा। इक्वल और अपोजिट है, अगर इक्वल डिस्टेंस ले लें तो कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेट वो पॉइंट ये है, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आप देखिए, इसके इस तरफ ये इफेक्टिव होगा और इसके इस तरफ इसका इफेक्ट चलेगा। इस तरफ की बात करते हैं, किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ तो कौन से एक्सेस में बनेगा, प्लस एक्सेस में बनेगा। इसका ग्राफ बना ये ऐसे बना, पॉजिटिव में। अब यहां देखिए, ये कहां जा रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है मतलब नेगेटिव साइड पर, नेगेटिव साइड का मतलब इसका ई इसमें कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो ये कहां आएगा, नीचे आएगा। ये लीजिए, समझ आ गया। बहुत आसान है ग्राफ ड्रॉ करने। ये हो गया चौथा ग्राफ हमारा। अब बात करते हैं, एक और कर लेते हैं ड्रॉ, आप प्रैक्टिस करिएगा इनको, बहुत आसान है। सर आप तो फिजिक्स को डरा दिए, फिजिक्स बच्चे भी पढ़ लेते हैं बेटा, लेकिन नहीं आ रहा तो देख लो, फिजिक्स को बच्चे भी पढ़ लेते हैं, यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, साइड पे दिखाया है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ा। चलिए अब हमारे पास चार्जेस हैं,
एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इनके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। ये हो गया ई, और ये प्लस आर यहाँ को, और यहाँ को हम दिखाएंगे माइनस आर। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट पर हमने यहाँ इस तरफ दिखाएंगे ग्राफ, तो ये कैसा है, माइनस है। माइनस के कारण ग्राफ इनवर्ट होता है, तो यहाँ पर ई तो क्या हो गया, नेगेटिव। ई बाकी सब कुछ वही रहा, 1/r²। ई 0 होगा व्हेन r इक्वल टू इंफिनिटी, एवरीथिंग सेम। अब कहां क्यों रहा है, इन्वर्ट, नेगेटिव है, ग्राफ नेगेटिव है, तो कहां आएगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आएगा। प्लस में तो आ नहीं सकता, तो कहां आएगा, माइनस में। इस तरफ दे चेक कर रहा हूं बस, कहां आएगा, नेगेटिव। अब इस तरफ चेक करते हैं, इस तरफ चेक करें तो कैसा, प्लस है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है, तो ये भी कहां चला गया, नेगेटिव एक्स एक्स में जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये भी नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ भी नेगेटिव प्लस कोऑर्डिनेट में आएगा, नहीं कहां आएगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आएगा, आएगा वो इसलिए नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आएगा। अब बात करते हैं इनके बीच में, इनके बीच में बात करें तो बीच में ये आएगा आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड और इसका इनवर्ड, सेम डायरेक्शन में आ गई। अब यहां पर नल पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि इक्वल और अपोजिट नहीं हो सकते। यस और नो, इक्वल और अपोजिट नहीं हो सकते, तो कैसा आएगा, इस तरफ जब इसके करीब जाएंगे तो इसका पावर ज्यादा होगा, इसके करीब आएंगे तो इसका पावर जब ज्यादा होगा, इस तरफ को इसका पावर ज्यादा होगा, इस तरफ को किसका पावर ज्यादा होगा, इसका पावर ज्यादा होगा। तो अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, अब सर ये ग्राफ कैसा आएगा, देखिए अगर हम यहाँ को जा रहे हैं प्लस एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, और यहाँ को जा रहे हैं तब भी प्लस में जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ग्राफ प्लस में बनेंगे। इस पार्ट के कारण भी यहाँ को इसका भी प्लस में ही बनेगा। बीच में दिखा रहे हैं सर, इस तरफ क्यों नहीं बना, इस तरफ का देखा तो दिया, बीच वाले में देख रहे हैं, तो इसका ग्राफ भी ऐसा, तो ये आएगा कुछ ऐसा, इसमें जीरो नहीं होगा बिकॉज इक्वल अपोजिट नहीं है। तो ये है सारे ग्राफ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में हमें ड्रॉ करने होते हैं हमारे उसमें। क्लियर है? तो इसे पढ़िए। चलिए अब बात करते हैं भाई अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, आप कुछ समझ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई में। ये ओरिजिन हो गया 0,0। क्लियर? एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, एक पॉइंट टेस्ट चार्ज इज हियर एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट चार्ज अपने से कितने डिस्टेंस पर, r1 डिस्टेंस पर ओरिजिन पर। आपने क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at r2 distance from origin। भाई ध्यान से देखिए, अब एक और पॉइंट है जो कि कितनी दूरी पर है, r2। यहां कितनी दूरी पर, r2। यहां पर एक पॉइंट है p, यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज q निकालना है। पॉइंट चार्ज की भी डिस्टेंस ओरिजिन से दिए हैं और इसकी भी ओरिजिन से दिए हैं आपने। अब ऐसे केसेस में क्या होंगे जब कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, फॉर एग्जांपल दे दिया ए चार्ज इज एट पोजीशन 1,3,2, another charge is at there is a point at there is a point of coordinate 3,2,6, find the electric field due to point charge at that point। तो दोनों अगर ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है तो हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज एट P। लेट ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r। मान लेते कितनी हो गई, r। तो क्या हुआ, हेयर बाय वेक्टर रूल r कितना होगा, r होगा, r वेक्टर होगा r2 माइनस r1 वेक्टर, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r2 वेक्टर माइनस r1 होगा। चलिए बहुत आसान हो गया। देखिए वी नो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब r तो क्या है, r ये है, तो क्या हो गया, अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा है तो यहां पर लिखेंगे r कैप, कप्पा लगाना पड़ेगा, कप्पा नहीं लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q/r3 r वेक्टर।
क्योंकि आर कप्पा क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड आर, मोड आर आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, ऊपर आर वेक्टर आ जाएगा, अदरवाइज आर कप्पा आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। क्लियर। अब क्या होगा, ई वेक्टर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। क्यू अपॉन आर क्या है, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो दैट मींस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको, जब इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होगी तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, वो पॉइंट यहां रखा जाएगा। अब मोड निकालना सबको आता है, मोड कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर है, मोड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, लेट R2 माइनस R1 ये है 3i कैप, R1 वेक्टर माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, ये है मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में है, x एक्सिस y एक्सिस ऐसे दिखाते वेक्टर, 11th में पढ़ा होगा वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं। मान लीजिए ये है r, इसका मॉड ये R2 माइनस R1 कैसे निकालेंगे, ये मॉड वैल्यू हो गया। मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडूड लगाना होता है, ये जो वैल्यू निकलेगी यहां पर तो यही रखा जाएगा, यहां जो रखा जाएगा इसका क्यूब मॉड वैल्यू है ये। तो मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, अंडूड लगाते हैं, आई कैप में जो भी टर्म है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो भी टर्म है उसका स्क्वायर प्लस के का जो भी टर्म है उसका स्क्वायर। मान लो ये -3 होता तो यहाँ क्या होता, -3 का स्क्वायर, वो प्लस ही हो जाता, तो उससे कोई परेशानी नहीं होती। तो ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर फॉर्म में चेक करके। क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए भाई, सिस्टम ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब सिस्टम ऑफ चार्जेस का यूज करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है, प्लस से कहां चलती है माइनस, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी वेक्टर होगा वो किसको फॉलो करता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। किसको फॉलो करता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, द टोटल वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी एट एनी पॉइंट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी वेक्टर, उस पर कौन सा प्रिंसिपल लग सकता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर आपको निकालना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एनी पॉइंट, सो व्हाट यू विल डू, क्या करोगे भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे, जो इसका रिजल्ट टोटल होगा वो क्या होगा, सारे चार्जेस जितने भी है उन सब का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मींस वेक्टर सम, वेक्टर सम में साइन के साथ प्लस है तो प्लस रख देना, माइनस है तो माइनस है, यस और नो, इस प्रिंसिपल बोलते हैं सुपरपोजिशन। सो एट एनी पॉइंट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड। अलजेब्रिक इसका क्या मतलब है वेक्टर का, देखिए अगर E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल E होगा E1 प्लस E2। अगर E1 राइट को है, E2 लेफ्ट को है, तब E क्या होगा, E1 माइनस E2। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक सम करना। तो ये इस तरह से ऐड होगा, क्योंकि किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये समझ गया आप। तो टोटल ई मतलब सिंपल समझ लीजिए, टोटल ई कहीं पर भी निकालना हो तो सबका सम होगा, लेकिन साथ में आपको देखना होगा डायरेक्शन कैसे। अगर सेम है तो सीधे प्लस कर देंगे, और अगर अपोजिट है तो फिर उन्हें माइनस भी करना पड़ेगा, जो माइनस में उन्हें माइनस रखना पड़ेगा, जो प्लस में उन्हें प्लस रखना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए ये सिस्टम है, क्लियर, ये सिस्टम है, यहां बहुत सारे चार्जेस हैं। यह है Q1 R1 पर, Q2 R2 पर, Q3 R3 पर, इस तरह से बहुत सारे हैं, बहुत n तक हैं। कितने हैं, n है, कितने हैं, n है, बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लेता हूं लेट सिस्टम ऑफ स्मॉल n चार्जेस ऑफ Q1 Q2 डॉट 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 Qn पोजिशन
R1 R2 डॉट 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 R। कैसे फाइंड फील्ड वैल्यू एट P। मान लीजिए एक पॉइंट है P, कहां है, यहां है, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन। तो इस जगह पर मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि क्या होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसा है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। मैं क्या करूंगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने अभी पढ़ा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, E1 अलजेब्रिक सम होगा, सबका होगा। तो मुझे E1 E2 E3 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं निकालता हूं क्या, E1, इसके कारण Q1 के कारण, कहां पर, P पर। ठीक है, अभी मैंने ये डिस्टेंस निकाली थी, कितनी होगी ये डिस्टेंस, देखिए ये है R1 पर, ये R पर है, तो कितना हो गया R माइनस R1। कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, बड़े से माइनस छोटे को कर देंगे, आ जाएगा। चलिए तो E1 क्या होगा, फील्ड एट P ड्यू टू Q1 कितना होगा भाई, E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता था, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E होता था, ये R कैप होता था। तो मैं हम कर लेते हैं E1 क्या होगा, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, R कितना है, R तो चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस R1 का होल स्क्वायर, R माइनस R1 कप्पा। सही है, बहुत अच्छा सर। चलिए बताइए फिर E2 कितना होगा, ये डिस्टेंस कितने होगी, R माइनस R2 होगी, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R माइनस R2 का होल स्क्वायर, R माइनस R2 का कप्पा, इक्वेशन 2 डॉट 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 डॉट। EN कितना होगा, EN होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN R माइनस RN का होल स्क्वायर, R माइनस RN कप्पा। ये हो गया इक्वेशन नंबर N। क्यों भाई, सही है, सबका पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के जैसे निकाला, सबका सिमिलर हो गया। अब टोटल फील्ड कितना होगा, टोटल फील्ड एट P कितना होगा, E वेक्टर होगा, E1 वेक्टर E2 वेक्टर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R माइनस R1 का होल स्क्वायर, R माइनस R1 कप्पा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R माइनस R2 का होल स्क्वायर, R माइनस R2 का कप्पा, प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN R माइनस RN का होल स्क्वायर, R माइनस RN का होगा। खोलेंगे कैसे इसे, आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 1/, अब देखिए सम प्लस 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 का क्या लगता है, समेशन। मैथमेटिक्स में क्या लगाते हैं, समेशन लगाते हैं, समेशन हो गया। क्या कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। अब जो चीज सेम है उसे वैसे लिख देंगे, क्यू यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो क्यू रहा, क्यू के नीचे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, डॉट 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 n, तो इसे लिख देंगे I। जो चेंज हो रहा है उसे I कर ले, अपॉन R है, R है, R है, सब में R आ रहा, R ऐसे रहेगा, यहाँ भी R आ रहा है, लेकिन R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, तो इसे RI कर लेंगे का होल। फिर साथ में R यहाँ आ रहा है, सब में आ रहा है, सब में रहेगा, R1 R2 R3 चेंज हो रहा, RI का कप्पा। I रेडी करेगा 1 से लेकर n तक। ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ये फॉर्मूला है, और सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है, आपको ये देखना होगा कि E और E1 E2 अगर सारे एक ही डायरेक्शन में सब कुछ सेम ऐड कर देंगे, कुछ यहाँ को है, कुछ यहाँ को है, कुछ को प्लस करेंगे, कुछ को माइनस करेंगे, समझ गया, कुछ को प्लस करेंगे, कुछ को माइनस करेंगे। मतलब क्या, कुछ को प्लस करेंगे, कुछ को माइनस करेंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चार, मान ली यहाँ पर बहुत सारे फील्ड है, इस पॉइंट पर बहुत सारे फील्ड है, E1 E2 E3 इस तरह से है। तो E1 अगर मैं प्लस ले रहा हूं तो E3 भी मैं प्लस लूंगा, दोनों सेम, पर E2 माइनस लूंगा। अब बुझे ना, टोटल ऐसे निकले, क्लियर। इसे अलजेब्रिक सम करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। सो
चलिए भैया अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। किसके कारण? टेस्ट चार्ज के कारण। कितना होगा? 0, बिकॉज टेस्ट चार्ज अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0। उसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। एक ही ऐसा चार्ज होता है जिसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अदरवाइज सारे चार्जेस अपने चारों ओर क्या पैदा करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन टेस्ट चार्ज नहीं करता। यस सर। दिस रूल E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? ये वैलिड केवल किसके लिए है? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला केवल किस पर लगेगा? पॉइंट चार्जेस की स्टडी में लगेगा। मैं लिनियर चार्जेस की आपको कराऊंगा, कॉम्पिटिशन IIT में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसमें से, लेकिन ये फॉर्मूला जो किसमें लगेगा? पॉइंट चार्जेस। लीनियर चार्जेस मतलब पूरी रॉड में चार्ज आ गया, पूरे गोले में चार्ज है, उनके लिए ऐसे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सब मैं आपको कराऊंगा फॉर्मूले। चलिए 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ग्राफ में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ग्राफ मैंने आपको सारे डिस्कस करा रहे हैं, अच्छे से डिस्कस करा है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए भाई मेरे पास क्वेश्चन आया, देखिए कल मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ, कल का पॉइंट है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली डिपेंड ऑन चार्ज वैल्यू, है ना? क्लियर? अब मान लीजिए क्वेश्चन आया, ये थॉट है, इस थॉट को लगाना है आपने, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन है Q1 यह है Q2, ठीक? ऑप्शन नंबर 1 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है Q1 इक्वल टू Q2। ऑप्शन 2 Q1 ग्रेटर देन Q2। ऑप्शन 3 Q2 ग्रेटर देन Q1। ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? देखिए ये बड़े कॉम्पिटेटिव है। अभी कौन सा इसमें से भी 2 निकल रही, इसमें से भी दो ही जा रही है, इसमें भी निकल रही, इसमें भी जा रही है, 2 ही हैं। पर अब कैसे होगा भाई? दूर से अगर इसे देखें तो कुछ भी नहीं देखना चाहिए हमें। क्या करते हैं ऐसे केसेस में? अभी आपको लग रहा होगा कुछ बच्चे कहेंगे 2 इसके भी डायरेक्टली डिपेंड लाइन पे डिपेंड करता है, ये सही नहीं, गलत है। यहां अगर आप देखें तो इसका जो एंगल है लाइंस का बड़ा है, मान लीजिए अल्फा है, और यहाँ जो मिल रही है वो बीटा है। लाइन एंगल भी सेम होना चाहिए, ये रूल लगाने के लिए आपके पास। अगर नहीं है तो फिर आप मेरे को जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो समझ लीजिए। ये तभी लगेगा जब लाइनों का एंगल भी सेम दिया हो, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं दिए गए हों। अब देखिए रेशियो नहीं निकालना आपने, इक्वलिटी चेक करनी है कि क्या कौन बड़ा है इनमें से, कौन छोटा है, ये चेक करना है आप तो इक्वल करें। चलिए अब देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, तो Q1 की 2 लाइनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, और Q2 की 2 लाइनों के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। क्लियर? अब कौन बड़ा है इसमें से? अल्फा बड़ा है किससे? बीटा से, है ना? अब टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है, 360। तो अगर बीटा 30 है तो इससे बड़ा ही होगा। मान लो ये अल्फा 120 है, तो कितनी लाइनें और आ सकती हैं? 120 एक कितना होगा? 240, 120 और कितना हो गया? 360 हो गया। इसका मतलब कितनी लाइनें आ सकती हैं? 3 लाइनें आ सकती है। तो 120 कितनी लाइनें आ सकती है? 3 लाइनें, है ना? ये कितना है? मान लीजिए छोटा है, ये छोटा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री टोटल 360 हो गया। इसका भी कितना हुआ चारों तरफ? 360 हुआ। तो 360, 2 के बीच का एंगल मान लो 60 है, और एक बना लेंगे तो 60 120 180, और एक बना लेंगे तो क्या आएगा? 240 हो गया, और एक बना लेंगे तो 300 और 400, 360। 1 2 3 4 5 6 आ गए। 1 2 3 4 5 6, कितने लाइनें हैं? 6 लाइनें बन सकती है ना इसकी। अब इसमें कितनी हो सकती हैं? एक, हमने तो 2 ही दिखाई है, बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, इनफ तोड़ना है। मैंने कहा ऐसे निकलती हैं 1 2 3, कितने निकल सकते हैं? 3। तो कौन बड़ा है? देखिए अल्फा बड़ा है बीटा से, तो Q2 बड़ा होगा किससे? Q1 से। याद रखिएगा एंगल बड़ा होने पर, लाइनों के बीच का एंगल बड़ा होने पर चार्ज क्या हो जाएगा? छोटा। Q2 बड़ा होगा Q1 से। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन।
आ गया समझ में? बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। क्लियर है? यस। तो इस तरह से अब मान लीजिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत बढ़िया जानदार क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप चेक करिए कहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, कहाँ पर कम हो गई, कैसे होगी, कैसे। चलिए, सो ये था। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। ये बहुत आपको ज्यादा हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। सो फिर मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।